and we have to assist them in filing these two forms. We have our learned speaker, Mr. Vikas Banka, who is going to deliberate on this very, very important topics. He is an expert in GST, the person who remembers the law by line, all the circulars, all the notifications, you name it, he will tell you in which line what is written. And without taking much of the time, now I will request Vishnukant Agarwal to introduce Vikas Banka, my dear friend, and then we'll like to hand over the proceedings to Vikas to deliberate on the topic, what are the changes are there in the GST 9 and 9C, and how to deal with the different situations. क्योंकि GSTR 1 के अंदर में जो फाइलिंग करने में मिस्टेक हुई होगी, GST 9 CB में हुई होगी, या उसके अलावा कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, how to incorporate them in the GSTR 9 and rectify those mistakes in 9(9)C. So over to Vishnukant for introducing Vikas. Welcome, Vikas ji. CA Vikas Kumar Banka is a practicing chartered accountant. He has secured All India 31st rank in CA intermediate exam held in May 1998. He has over 21 years of experience in the field of audit, direct and indirect taxation, and his core expertise lies in analyzing legal provisions from a practical perspective. He provides consultancy to various business houses on a wide range of issues and also handles their litigation matters. He also provides ERP, accounting software implementation services in line with GST, as well as implementation of newly introduced e-invoicing system. He was invited to be a faculty member for providing training to audit team officers of Bihar Commercial Taxes, and before that he was part of a GST training program to senior officers of Commercial Tax Department of West Bengal, up to the level of Joint and Special Commissioners. At present, he is chairman of Membership Growth, Database Management, Social Media Subcommittee of Association of Corporate Advisory and Executive, a member of the Indirect Tax Committee of DTPA, and was a member of the editorial board of BIPCA e-magazine e-Jain. Before that, he was a special invitee to Kolkata study group formed by the Indirect Tax Committee of ICAI. He has actively contributed in the preparation of revised technical guide on GST return, guidance note on accounting treatment on GST, vetting of published background materials on GST, and guidance note to bank branch audit. He has to his credit many write-ups and articles in various magazines and tax gurus. He is a regular speaker on various GST related topics like annual return audit, ITC refund, and so on at different forums like EIRC, CIRC, NIRC, and its branches and chapters, ACA, DTPA, BIPCA study circle, etc. Welcome, Vikas ji. अब स्टार्ट करें प्रमोद? एकदम. Vikas ji start करते हैं. Thank you, sir. First of all, very good evening. I request all the participants who are not participating kindly mute themselves. Thank you. First of all, very good evening to all of you, and I am really very much thankful. BBD Bag CA Study Circle EIRC, its convener Pramod Bhaiya, Vishnukant Bhaiya, Jai Bhai, and other office bearers for giving me opportunity to discuss once again that one of the most vulnerable topic in GST, that is GSTR 9 and 9C, annual return and reconciliation statement. My dear friends, this is now, I think it's a 5 years we are going to file GSTR 9(9)C annual report and reconciliation statement. Today we will discuss not only the basic provision, but we will focus on the optionals area which has been withdrawn this year, and what is the changes between 2021 financial years and 21-22, which is we are going to file the annual return and reconciliation statement. And I request all the participants kindly participate in between discussions. Let me allow to share my PPT. I hope my PPT is visible. Hi, it is visible. Thank you. My dear friends,
before we start, Pramod Bhai has pointed out that annual return is required to be filed once your turnover is more than 2 crores, and annual report along with the reconciliation statement is required to be filed if your turnover is more than 5 crores. That means the person whose annual aggregate turnover is less than 2 crores, they are not required to file either annual report, annual return, or reconciliation statement. Correct? Pramod Bhaiya, I would like to add something over here is that section 44, read with rule 80, guide us to whom required to be filed annual return and reconciliation statement. Section 44 says every registered person shall furnish an annual return in form GSTR 9 on or before the 30th December. We all know the last date is 31st December. And how many of us think that this date will be extended? Please drop the message in chat box. How many of us think that this date will be extended? As usual in the past, as per our past experience. My dear friends, I think this time date will not be extended. So let us prepare ourselves to file the annual return along with the self-certified reconciliation statement, that is 9C, before the 31st December. Now the question arises is whether the 2 crore turnover, what do you mean by aggregate turnover? What is the meaning of aggregate turnover? Suppose I have the interest income or exempt income to the extent of 1.5 CR and 60 lakhs of my rental income, that is the commercial rental income. So whether I need to file the annual return? Please drop the answer in the chat box. And if someone want to unmute themselves, please we can talk each other. Vishnukant ji. एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जेम्प्ट और वो भी आ जाएगा सारा मिलाकर के. Exactly. Vishnukant ji, I request some of the participants kindly on their video as well. 1 or 2 or 3 participants. हाँ, अब लग रहा है कि अपने लोग आपस में बात कर पा रहे हैं. ऐसे तो मेरे को लग रहा है तो मैं अकेला रूम में बैठ के खुद से बात कर रहा हूँ. नहीं, हम लोग आपको एकदम फ्री छोड़ देते, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. नहीं डिस्टर्बेंस सर, प्रमोद जी को अच्छे से मालूम है, डिस्टर्बेंस नहीं होती है. राइट. 2 करोड़ रुपए का जो एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन है, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2(6) ऑफ द CGST एक्ट, where the turnover of the exempt will also included for the purpose of the considering the 2 crores and 5 crores the figures. So please take care. If suppose you are dealing in the exempted product of, say example, rice, wheat, etc., and your taxable turnover is even a 1 rupee, still you are required to file the annual return. Number one, you are 100% dealing in the exempted turnover. You are not dealing in the taxable turnover, but you have taken the GST number. You are registered under the GST. Then still you need to file your annual return and reconciliation statement depending upon the turnover amount. So please take care. Normally ये लोग छूट जाते हैं, लगता है कि मेरा टर्नओवर ही नहीं है, एग्जम्प्ट में डील करते हैं तो हमारा नहीं लगेगा. नंबर 1. नंबर 2, ये तो 2 करोड़ के जो लिमिट है, whether this is applicable to only financial year 21-22 or it is onwards. 22-23 में भी अप्लाई होगा, 23-24 में भी अप्लाई होगा. How many of think that ये जो टर्नओवर का 2 करोड़ का जो लिमिट है, बेसिक लिमिट जो है, जिसमें एनुअल रिटर्न मेरे को नहीं फाइल करना पड़ रहा है, या आगे भी मेरे को एग्जम्पशन मिला हुआ है क्या? आगे भी एग्जम्पशन होना तो चाहिए विकास जी. नहीं सर, ये एग्जम्पशन तब आएगा जब बार-बार नोटिफिकेशन आएगा. अच्छा, यस, या बार-बार का 1 साल का नहीं है ये जो अभी जो एग्जम्पशन 2 करोड़ का आपको मिला हुआ है, दैट इज थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 10/22. इस साल जो आया हुआ है, दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 21-22. ये 2 करोड़ का लिमिट मिस इंटरप्रेट ना करें अपने लोग. आगे 2 करोड़ का है कि नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर में ये फर्दर वो लोग नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं या नहीं करते हैं सीबीएसई. अगर नोटिफिकेशन नहीं है एग्जाम्पशन का, एवरीवन नीड टू फाइल द एनुअल रिटर्न. वेयर एज 9C के लिए 5 करोड़ की लिमिट है, वो रूल में दिया हुआ है. ठीक है ना? ये मेरे ख्याल से नेक्स्ट से आ ही जाएगा सबको करना. ये भी इन्होंने छोड़ रखा, बात अलग है.
मेरे को सर भैया मेरा मुंह का बात आप ले लिए, हाँ। मेरे को ऐसा लगता है इसीलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मिसकंसेप्शन रह जाते हैं कि भाई पिछले साल 2 करोड़ का था तो और पीछे भी 2 करोड़ का होगा, ये मन में रह जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट पेज में एक बार जैसा एक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा, यस प्लीज भैया, यस। ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक रिकॉन्सिलेशन इनपुट और सबका बनाकर देना पड़ेगा साथ में कि कहाँ से क्या फिगर आई है? No. See, if your turnover crossing 5 crores limit, then you have to file your annual return, that is GSTR 9. अच्छा, that is self-certified means 9C. You mean to say 9C. Why the self-certified word is used? Before 21, the chartered accountant need to certify. Up to 20, March 20, जितने भी थे अपने लोग अपने certify करते थे. 9C को now this is not required to be certified by a chartered accountant. Correct. That is the self-certified 9C reconciliation statement means 9C यहाँ पर. Correct. ठीक, okay. Anything else? चैट बॉक्स में क्वेरी है। योगेश पाटोदिया जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नॉन जीएसटी आइटम सर, पेट्रोल डीजल की जो सेल है दैट इज नॉन जीएसटी आइटम, दैट इज द नॉन टैक्सेबल आइटम एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 ब्रैकेट 78 इट इज डिफाइंड अंडर द नॉन टैक्सेबल आइटम and participants are requested to keep themselves mute. Only the participant who is discussing, only he should unmute himself. Yes sir. Vidya Krishnan ji, kindly mute yourself. Vidya Krishnan ji. Yes Yogesh ji. Petrol pump turnover, that is the sale of petrol, sale of diesel, all these 5 items are not non-GST supply, but it is the non-taxable supply by virtue of section 2 bracket 78 and by virtue of section 2 bracket 47, that is for the exempt supply, it becomes exempt supply because exempt supply includes the non-GST, non-taxable supply also. ठीक है ना? पेट्रोल पंप की जितनी भी सेल है ना सर, वो सारे के सारे एग्जाम्पल में कवर है। It is not non-GST supply that I will also deal in detail later on. भैया ये जो अपने GSTR 9 की जो अपने प्रीव्यू देखते हैं ना, जब तक अपने लोग GSTR 9 को एक समराइज रिव्यू में नहीं देखते हैं तब तक अपने GSTR 9 को फिलअप नहीं कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, 2 डिस्क्लेमर सर है सर मेरे पास। GSTR 9 ज्यादा डिटेल में अगर आप लोग देख लेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, प्रमोद भैया जैसे GSTR 9 नहीं फिलअप कर पाएंगे क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट हैं, पुराने समझते हैं लॉ को, ये लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, नहीं फाइल कर पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज और इंटेंट ऑफ द फॉर्म इन समवेयर सम पॉइंट इट इज डिफरेंट, सो यू हैव टू टेक अ प्रैक्टिकल कॉल, नंबर 1. And number 2, whatever I am suggesting that these figures should be go in this table or you have to fill this table like this. This is my professional humble suggestion. You please take your own call while filing your GSTR 9 because you are better person to explain your departmental officer. Clear है ना? अपने जब GSTR 9 को देखते हैं ना सर, तो GSTR 9 का प्रीव्यू जो आता है पार्ट 1 है टेबल 1 से लेके 3 तक, ये ऑटोमेटिकली फिलअप होके आता है सिस्टम से, अपने को कुछ उसमें कार्यस्थानी करने की दरकार नहीं है, ठीक है ना? प्लीज टेक ए पेन एंड पेपर। मैं आपको ये जितने भी टेबल्स हैं वो सिर्फ एक पेन एंड पेपर में एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं जो आपको बहुत काम आएगा। करेक्ट है सर? बिफोर वी स्टार्ट GSTR 9(9)C, प्लीज गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट अंडर सेक्शन 2 ब्रैकेट 13 ऑफ द CGST एक्ट. It says that there is 4 limbs for conducting the audit of any SSE. क्या क्या है? Turnover declared, taxes paid, ITC claim और refund. यही 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी ऑडिट के, ठीक है ना? करेक्ट है?
इसके अलावा एक लिंक और है, दैट इज कंप्लायंस, फॉर द कंप्लायंस ऑफ द जीएसटी लॉ। एक बार मैं कंप्लायंस को साइड करता हूं। अपने अर्थमेटिकल फिगर्स ये 4 लिंक में बेस करते हैं, ठीक है ना। मैं क्या क्या बताया सर, कोई भी एक आदमी अनम्यूट करके बोल लें। टर्नओवर डिक्लेयर्ड, टैक्सेस पेड, आईटीसी क्लेम, रिफंड। करेक्ट सर। हाँ वो 100 हो गया यार, ये तो चक्कर हो गया अभी। यस विष्णु भैया, हाँ कर दिया मैंने, म्यूट कर दिया उनको, मैंने उनको म्यूट कर दिया। अब देखिए, जब हम लोग टर्नओवर डिक्लेयर्ड की बात करते हैं ना, तो टर्नओवर डिक्लेयर्ड जीएसटीआर 9 में कहां पर है? टर्नओवर के फिगर्स हम लोग जीएसटीआर 9 में कहां डालते हैं? टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10, टेबल 11। मींस जो प्रमोद भैया बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हम लोगों ने जीएसटीआर 1 में कोई और फिगर डाल दिया, 3B में कोई और फिगर डाल दिया, अब क्या करें? बुक्स हमारा कुछ और बोलता है। My dear friends, please take a call that this is the last communication for a particular financial year with the department relating to your information of your turnover and input tax credit. You can pay tax through this GSTR 9, but you cannot avail the ITC. Mind it. You please note it. You cannot avail the ITC. Only 2 things is there. One is tax paid and second is ITC. कोई भी जीएसटी में तो 2 ही चीज है ना, तो आप टैक्स पे तो कर सकते हैं जीएसटीआर 9 से, आईटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटीआर 9 फाइल करने से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर हिट नहीं होगा। करेक्ट है ना। तो हम लोग जब टर्नओवर की फिर से आते हैं, टर्नओवर की कौन कौन सी टेबल है? टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11। मींस you are required to sum total of table 4 plus 5 plus 10 minus 11 equal to your books का फिगर। करेक्ट है। सेकंड मैंने क्या बताया सर? टैक्स पेड, टर्नओवर डिक्लेयर का टैक्स पेमेंट होना चाहिए। टैक्स पेमेंट के लिए 2 टेबल है, टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 14। तो 9 plus 14 इक्वल टू टैक्स पेड। आईटीसी का क्या है? आईटीसी है 6 minus 7 minus 12 plus 13। रिफंड की सिंगल टेबल है 15, उसको छोड़ दीजिए, वो ऑप्शनल है। तो वी विल नॉट पुट आवर एफर्ट ऑन द फिलिंग ऑफ द जीएसटीआर टेबल नंबर 15 ऑफ द जीएसटीआर 9। तो हमको 3 जगह भरना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज टेक ए नोट, ये आपको बहुत इजी होगा जीएसटीआर 9(9)C फिलअप करने में। टर्नओवर डिक्लेयर्ड मींस टेबल 4 plus 5 plus 10 minus 11, सिंपल, ठीक है। टैक्स पेड 9 plus 14, आईटीसी 6 minus 7 minus 12 plus 13। मेरे को नहीं लगता कि जीएसटीआर 9 इतनी सिंप्लीफाइड वे में अपने एक पेज में जॉट डाउन कर सकते हैं। अब ये सारा जो टेबल है, ये टेबल आपको मैच कराना है अपने एक्चुअल टर्नओवर से। इफ योर टर्नओवर इज राइटली डिक्लेयर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैच विद दिस। इफ योर टर्नओवर इज राइटली डिक्लेयर्ड विद इन 3B, मैच दिस। इफ योर टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1, मैच इट। ठीक है ना। Members are requested not to put their GSTI membership number in the chat box, please. Now, हम लोग जब जीएसटीआर 9(9)C में लॉगिन करते हैं ना, फॉर्म में, सर्विस में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे, एनुअल रिटर्न का कॉलम आता है। एनुअल रिटर्न का कॉलम को जब क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके की टेबल्स निकल के आती है। करेक्ट है ना। अभी इन तरह टेबल जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारे के सारे बॉक्सेस यहाँ पे हैं, बहुत सारा डब्बा बना हुआ है। कौन सा डब्बा में क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये डब्बे को फोकस करते हैं। समरी ऑफ जीएसटीआर 1 और आईएफएफ समरी इंटायर ईयर का सिस्टम दे रहा है। डाउनलोड ऑफ 3B पूरा इंटायर ईयर का 3B दे रहा है, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम में आ जा रहा है ऑटोमेटिकली फिलअप होकर के। इस पूरे जीएसटीआर 9 में एक पॉइंट है, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। पूरा जीएसटीआर 9 आप खुद से फिलअप कर सकते हैं, बट 3 फिगर ऐसे हैं जिसको आप टच भी नहीं कर सकते हैं। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दैट। द 3 फिगर्स यू कैन नॉट टच। द फिगर इज टेबल नंबर 6A, टेबल नंबर 8A और टेबल नंबर 9 का पेड पोर्शन, टैक्स पोर्शन। ओनली दीज 3 फिगर्स आर फ्री फिगर, यू कांट टच इट। ओके,
नाउ गवर्नमेंट ने इसको टच क्यों नहीं करने दिया? कारण क्या है इसमें? सर वहां पे भी आ रहा है, वो टच ज्यादा करने से फोन खराब हो जाता है। ये टच क्यों नहीं करने दिया? आई एम एक्सप्लेनिंग what is the purpose of designing of the form in such a way that we need to understand first, then you will understand my point. Correct? इंद्रनील दास, यस सर, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूं 6A 8A पेड पोर्शन ऑफ टेबल नंबर 9 डाल दिया सर मैंने। ये 3 टेबल ऐसी हैं जो टच करने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? क्यों नहीं मिलेगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए देयर इज ए, मतलब अब तो देखिए 5वां साल चल रहा है तो ये मिस्टेक्स अब उतनी नहीं होती है। स्टार्ट के 17, 18, 18, 19 में we have committed so many mistakes relating to the GSTR 9, GSTR 1, 3B like that. GSTR 1 में कुछ और फिगर है, से एग्जांपल GSTR 1 में 100 रुपीज है, ठीक है? 3B आपने 80 रुपीज का भरा, एक्चुअल टर्नओवर आपका 100 रुपीज का है। कैसे भरेंगे GSTR 9 में? ये 100 रुपीज कैसे रिपोर्ट करेंगे? Anyone, please, anyone? My question is very simple. GSTR 1 rightly reported, that is 100 rupees. GSTR 3B only 80 rupees, 20 rupees short is there, and books of accounts is 100. That means my actual turnover is 100. तुम फिगर को तो चेंज कर ही सकते हैं। My question is how you will resolve this type of problem? This is a very common problem. नहीं, मैं अपने फॉर्म को GSTR 9 के अंदर में तो मैं आउटवर्ड सप्लाईज को चेंज कर ही सकता हूँ जो हमारी एक्चुअल सप्लाई है। Correct. I will change that. Mind it, your GSTR 9 is rightly auto-populated, sir, because your GSTR 1 is correct. अच्छा, समझ जाओ। इसमें आउटपुट जो है एक और टेबल है जिसके अंदर में आउटपुट टैक्स पेमेंट का दिया जाता है, वहां पर टेबल नंबर 9 है सर, टेबल नंबर 9 है। अब तो शायद यहाँ पर हम करेंगे इसके जगह पर। करेक्ट, आई एम कमिंग टू दैट। अब आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। टेबल नंबर 9 का पेड पोर्शन ब्लॉक है, वहां पे आपको 80 रुपीज दिखाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ एक है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, टेबल के करके मैं नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन आई जहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट किया बात है। अब एग्जैक्टली हमारी ऑफिस की स्टाफ बता पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, यू हैव 2 ऑप्शन। आपने 20 रुपया टैक्स शॉर्ट पेमेंट किया इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है? इन आवर एग्जाम्पल, ये 20 रुपया क्या हुआ? या तो आपने अप्रैल मई जून में पेमेंट किया होगा, ठीक है? सब्सिक्वेंट ईयर में पे कर सकते हैं हम लोग 26 में, है ना? या हमने आज भी आउटस्टैंडिंग रख रखा, दिया ही नहीं है पैसा मैंने। 2 ही केस हो सकता ना? हाँ सही है, करेक्ट है। मान लीजिए आपने से एग्जांपल जून में जाकर के वो 20 रुपीज पेमेंट किया है, आपका टेबल नंबर 4 में GSTR 1 से 100 रुपये आएगा, टेबल नंबर 9 में 80 रुपीज पेड में दिखाएगा क्योंकि वो 3B से ऑटो पॉपुलेटेड होता है। टेबल में आपका 80 रुपीज आएगा, वो दोनों मैच कर जाएगा, लेकिन लायबिलिटी आपकी 100 की है, ठीक है? पेमेंट तो आपने 80 किया है, 100 तो पेमेंट किया नहीं है। तो आपका GSTR 9 सही नहीं किया। आपको सही करने के लिए क्या करना होगा? GSTR 1 को एडिट करना होगा, एडिट करके वहां 80 रुपीज लिखना पड़ेगा और 80 का ही टेबल नंबर 9 में कैरी ऑन होगा, 80 मैच करेगा, और टेबल नंबर 10 में आपको 20 रुपया दिखाना पड़ेगा और टेबल नंबर 14 में 20 रुपीज का पेमेंट दिखाना पड़ेगा आपको। देन योर टेबल 4 + 5 + 10 - 11 इक्वल टू बुक का फिगर एंड 9 + 14 इक्वल टू टैक्स पेमेंट का फिगर। करेक्ट है? एक क्वेश्चन है विकास जी, GSTR 1 में अगर हम करेक्शन करेंगे तो फिर हमारा GSTR 1 तो ठीक है, आपका GSTR 1 ठीक है। हाँ, आपने गलती करी है, 3B में टैक्स नहीं दिया है। हाँ 3B, हाँ। आप देखिए GSTR 9 का इंस्ट्रक्शन नंबर 2 देखिएगा, वहां क्या बोल रहा है? द फिगर्स डिक्लेयर्ड इन टेबल नंबर 4 इज प्राइमा फेसिया टेकन फ्रॉम द GSTR 1, but the figure is declared to the extent of tax discharged through the 3B. So table number 4 will contain only those figures on which you have tax discharged. You have tax discharged to the extent of 80 rupees only.
So table number 4 need to be reduced to the extent of 80 rupees only. Balance 20, since you have discharged in the subsequent year, then it is a part 5 figure. You have to fill that figure in table number 10. ठीक है. Clear? Second scenario. Second scenario क्या हो रहा है सर? आपने आज तक नहीं दिया, आप आज देना चाह रहे हैं. 3B में नहीं दिया, दैट मीन्स 3B में नहीं दिया, करेक्ट है. अब आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू फाइल DRC 03. In that case, don't edit table number 4. Let it be table number 4 as 100. Table number 9, there will be mismatch of 20 rupees. You pay through the DRC 03 to match it. Correct? ठीक. Any question relating to outward supply? Then I will move ahead accordingly. मैं थोड़ा मिस कर गया, यहाँ पे कोई फोन आ रहा था सेमिनार से रिलेटेड ही. कोई नहीं. कई बार क्या होता है, GSTR 9 GSTR 1 के अंदर में जो फिगर दी गई है वो GSTR 3B में से GSTR 1 में सही फिगर दी गई है, लेकिन टैक्स पेमेंट, अच्छा वो तो तुमने मुझे बता ही दिया कि GSTR 1 के अंदर में सही गया हुआ, टैक्स का पेमेंट कम हुआ, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? ऑलरेडी भी देखते हैं. करेक्ट भैया. इसमें क्या ना, इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्म नंबर GSTR 9 का इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पढ़िए. आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट for all of the participants. Part 2 consists of the details of the all outward supply in advance received during the financial year for which annual return is being filed. For 21-22, it may be noted that the all supplies for which payment has been made through the GSTR 3B between so and so liability not declared in GSTR 1 3B may be declared in this season. एकदम सिंपल. जितना आपने टैक्स पेमेंट किया है वो टेबल 4 में भरना है. इसका टैक्स का पेमेंट आपने सब्सिक्वेंट ईयर में किया है वो पार्ट 5 में भरना है, टेबल 10 एंड माइनस टेबल 11 में, और करस्पॉन्डिंग टैक्स टेबल नंबर 14 में. ठीक है. और जिसका पेमेंट नहीं किया है वो लायबिलिटी टेबल 4 में ही जाएगी और उसका DRC 03 फाइल होगा. दिस इज द सिंपल वे. करेक्ट है? करेक्ट. योगेश पाटोदिया जी, नहीं, DRC 03 only in case you have filled the figure in table number 10. You need not to fill the figure in table number 14 in case you are discharging the liability through the DRC 03. ठीक है ना? ये देखिए एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे बनाया है एक सिंगल पेज में. टेबल नंबर 5 में क्या क्या फिगर रिपोर्ट करते हैं हम लोग. जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू SEZ, RCM, एग्जाम्प्टेड, ब्ला ब्ला, इस तरह के फिगर हम लोग टेबल 4, 5, 6 में रिपोर्ट करते हैं GSTR 9 में. टेबल अपना ये B2C सप्लाई, इस तरह से ये पूरी टेबल्स जाती है यहाँ पे. ये मैं टेबल में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. दैट वी आर ऑल अवेयर सिंस लास्ट 5 years वी आर फाइलिंग द GSTR 990. आई एम टॉकिंग ओनली द फिगर इंपॉर्टेंट पोर्शन व्हिच वी रिक्वायर टू फाइल इन दिस ईयर 21-22. इस साल में चेंजेस क्या हैं? दिस इज द मेजर क्वेश्चन. HSN वाइज डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी इस बात. भैया आप आगे भाग गए, लास्ट में पहुंच के सीधा. आप क्रिकेटर स्पोर्ट्समैन है तो सबसे लास्ट में चले जाते सीधा एकदम एक बार में. और क्या चेंजेस हैं? एनीवन प्लीज. पता नहीं यार, फॉर्म तो मैंने देखा नहीं. मैं बताता हूं भैया. सबसे पहली जो चेंज है, पहले देखिए पुराना जो फॉर्म था बिफोर 21-22, दैट मींस अप टू मार्च 21, इसमें बहुत सारे टेबल्स ऑप्शनल थे. ऑप्शनल किस नोटिफिकेशन थे? नोटिफिकेशन नंबर 56. मैं मजाक से बोलता हूं, अब तक 56 नोटिफिकेशन है. कब आया ये? 14 नवंबर 2019 को. करेक्ट है? नेहरू जी के बर्थडे पे ये एक नोटिफिकेशन आया था. अब तक 56. उसमें जितने भी टेबल्स थे उसमें मैक्सिमम को इन्होंने ऑप्शनल बनाया था. नाउ थ्रू द न्यू अमेंडमेंट्स, थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 14 रिसेंटली इशूड बाय द CBIC, ये धीरे धीरे करके अपने जो ऑप्शनल टेबल्स थे उनको मैंडेटरी कर रहे हैं. तो मैं जो टेबल्स लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल मैंडेटरी हो गए हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, सो दैट यू कैन फाइल द करेक्ट.
यस सर, पाटोदिया जी ने एकदम ठीक डाला है. क्रेडिट नोट रिक्वायर्ड टू बी शो. यस सर, नॉट ओनली क्रेडिट नोट, आई एम टेलिंग यू, in table number 4 there is two part. One part is relating to the outward supply and second part for the adjustment relating to the outward supply by way of amendments, by way of credit notes. Earlier, before the 21-22, these table was the optional. Now it is not optional. You have to fill the credit note or amendments made in the subsequent returns. Are you getting my point? पहले क्या था, मान लीजिए मेरा 100 रुपए का सप्लाई था अप्रैल का महीना में, और अगेंस्ट ऑफ विच आई हैव इशूड अ क्रेडिट नोट ऑफ 10 रुपीज, तो आई कैन चेंज द टेबल एट टॉप, रिपोर्ट डायरेक्टली 20 रुपीज. नाउ इट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू फिल 100 रुपीज इन द टॉप, 10 रुपीज इन द एडजस्टमेंट कॉलम. ये एक मेजर चेंजेस आया है. ये निकालेंगे कहां से? अब ये क्वेश्चन आता है, ये निकालेंगे कहां से? My dear friends, all these amendments are well covered in your GSTR 1. ये जो समरी यहां पर देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड GSTR 1 IFF समरी है ना, यहां से जब पूरा रिटर्न निकालेंगे सारा अमेंडमेंट्स आपको यहां से मिल जाएगा. ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट अमेंडमेंट. अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये टेबल नंबर 4 में तो अमेंडमेंट आ गया, टेबल नंबर 5 में क्या जाता है? Outward inward supplies made during the year. On which tax is not required to be paid. Not payable. Yes. In that case, डेबिट नोट क्रेडिट यहां पे आप नेट करके कंटिन्यू कर सकते हैं. यहां पे नेट आप ऊपर में ही कर लीजिए, नीचे में डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिखाने की जरूरत नहीं है. ओनली वन चेंजेस इज देयर इज, यहां पे देखिए टेबल नंबर 5D, 5E एंड 5F है, वेयर वी रिक्वायर टू रिपोर्ट द एग्जाम सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई एंड नॉन जीएसटी. ये 3 टेबल है वहां पे. ये तीनों को अपने को सेपरेटली, एग्जाम सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई एंड नॉन जीएसटी, ये 3 है. एग्जाम, नील रेटेड, नॉन जीएसटी. करेक्ट है ना? 5D, 5E एंड 5F. In this case, the non GST supply need to be reported in separate table and nil rated and exempt can be clubbed. अब ये नॉन जीएसटी अलग से करना है. नॉन जीएसटी मतलब ये आपका पेट्रोल सबका हो गया ना, पेट्रोलियम जो नॉन जीएसटी में आ गया. और बताइए सर. और फ्रेंड्स प्लीज शेयर, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नॉन जीएसटी सप्लाई? Then alcoholic liquor for human consumption. हाँ. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, और बताइए सर. अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट नॉन जीएसटी है, नॉन टैक्सेबल क्या हुआ? So I think that is as per notification number जो exempt वाला है, जहाँ पे नील रेटेड है, 1 है कि नोटिफिकेशन नंबर जो है वो भी मैं आपको याद करा दूंगा मुकेश जी. टैक्सेबल के नोटिफिकेशन कौन से हैं, एग्जाम्प्ट के कौन से हैं, और रिवर्स चार्ज के कौन से, अभी याद करा दूंगा. कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे. तो वही वाला सर, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो वो नोटिफिकेशन है जहाँ पे वो एग्जाम्प्ट नील रेटेड है वो आना चाहिए वहां पे. नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं कि अगर नॉन जीएसटी सप्लाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो नॉन टैक्सेबल क्या है? आप ही बताइए. हाँ, मैं तो बताऊंगा सर. मैं तो बताऊंगा. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम टेलिंग यू. सी, non GST supply is not defined under the GST law. Nowhere it is defined what is non GST supply, but GST supply is defined. वो अभी 100 से लिमिट पूरी. Amol, you mute yourself here. Just please just. विष्णु भैया, हाँ, नॉन जीएसटी सप्लाई जीएसटी लॉ में कहीं भी डिफाइंड नहीं है. ठीक है? दैट मींस जीएसटी लॉ में जीएसटी सप्लाई डिफाइंड है. GST supply under section 7, it says that supply of goods or supply of service. That means something which is neither supply of goods nor supply of service in terms become the non-GST supply. Then schedule 3 will come. yes. Hence, Mukesh ji, you are rightly pointed out. Schedule 3 supply is the non-GST supply. In addition to that, there is 2 circulars which says that this is also non-GST supply. That is circular number 1 of the IGST and circular number 21 of the CGST law. Are you getting my point?
Is it clear to all of us? Yes. Now this question you may ask, if schedule 3 item is the non-GST supply, then petroleum product, what is that? Whether this is the non-taxable supply? Absolutely right, sir. You see section 2 bracket 78 define the non-taxable supply, which says that non-taxable supply means there is that tax is not leviable to that supply. By virtue of section 9 bracket 1 and by virtue of section 9 bracket 2, petroleum product is deferred and liquor for human consumption by virtue of section 9 bracket 1, it is a deferred for the taxation under the GST law. No levy is there till now. So since levy is withdrawal by virtue of section 9 bracket 2, so section 2 bracket 78 says that the goods and services which are not leviable to tax is the non-taxable supply. In my humble submission, that petroleum product becomes the non-taxable supply. Correct? Now, अब ये क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि सर ठीक है, एग्रीड, तो फिर एग्जाम्प्ट क्या है? My dear friends, please go through section 2 bracket 47 for exempt supply. It says that the notification which are issued by the central government under section 6 of the CGST Act and section 11 of the IGST Act, correct? Plus non-taxable supply is an exempt supply. अब प्रमोद बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुकेश जी ने अभी पॉइंट आउट किया कि सर एक कोई नोटिफिकेशन था जिसके थ्रू एग्जम्पशन है. कौन सा नोटिफिकेशन है? नहीं याद रहता अपने लोग को. माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट. प्लीज टेक ए नोट ऑफ टैक्सेबल डैश 111, ये डिजिट्स याद कर लीजिए. टैक्सेबल डैश 111, एग्जम्प्ट डैश 212, आरसीएम डैश 413. कर लिया नोट? एकदम simplest way I am telling you to learn the which one is the taxable notification, which one is the exempt notification, and which one is the reverse charge notification. My dear friends, single digit goods के थे, double digit service के थे, तो 1 से 11 नोटिफिकेशन में सिंगल डिजिट 1 है. यस, पटवारी जी ने कहा प्लीज रिपीट. ओके सर. मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं. ठीक है ना? सिंगल डिजिट गुड्स, डबल डिजिट सर्विस मींस करेक्ट सर. टैक्सेबल सप्लाई 1 हुआ गुड्स का, 11 हो गया सर्विस का. एग्जम्प्ट सप्लाई 2 हुआ गुड्स का, 12 हो गया सर्विस का. 413 4 हो गया आरसीएम के लिए और 13 नंबर हो गया सर्विस का आरसीएम. अब ये 6 नोटिफिकेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टू लर्न for the purpose of determination of the exemption, taxability and RCM. Am I clear? मुकेश जी, am I clear? यस सर, यस सर. आप तो नहीं भूलेंगे आप? Yes, Manish ji, I am coming to that. What about interest income credit to profit and loss account to be reported in exempt income? I am coming to that. For the purpose of interest income, please go through notification number 12. It is covered over there. So it is a exempt supply. अभी तक मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि सर फिर नील रेटेड क्या है. प्रमोद भैया, you are unmuted. You are muted. प्रमोद भैया, you are muted. It is a rate जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि जिसके ऊपर कोई टैक्स रेट नहीं है, जीरो रेट, नील है. दैट इज नील रेटेड. भैया कौन सा है? दैट इज अ जीरो रेटेड. That is not zero rated supply means zero rated supply is the supply to the export supply and second one is the SEZ supply. Under section 16 of the IGST Act. I am talking about what is the nil rated supply. Yes, Indranil Das, rate is mentioned in tariff as nil. Very good, sir. Which are the items? Is there any goods which is rate is assigned as nil? जहाँ पर जीरो रेट दी गई है, why nil rated हो गई है?
यहाँ पर जीरो रेट नहीं दी नहीं है। नहीं 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 नो नो Sir, नो I think it is agriculture produce is nil rated. no 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 Mukesh ji no 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 I am clarifying sir I am clarifying Manish Sharma ji salt is exempt no no सर जी Jagri जहाँ पर जीरो लिखा गया रेट इज रिटर्न एज जीरो दैट इज no नील no 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 sir रेटेड। we are committing mistake नहीं। we are committing see which one is the rate notification number 111 correct 111 means goods का 1 सर्विस का 11 गुड्स नोटिफिकेशन 1 में कोई आइटम नील रेट पे नहीं है आई एम टेलिंग यू वहां पे शेड्यूल्स बने हुए हैं 6 शेड्यूल है 0.25%, 0.1%, सॉरी 1%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% इस तरह के रेट शेड्यूल है। हाफ आप कर लीजिए सबको सीजीएसटी में और आईजीएसटी में डबल कर लीजिए राइट। वहां पे कोई भी नील रेटेड आइटम नहीं है, गुड्स का कोई नील रेटेड आई एम टेलिंग यू। सर्विस नोटिफिकेशन, टैक्सेबल नोटिफिकेशन कौन सा सर्विस का, प्लीज रिपीट एनीवन, तो मेरे को लगेगा हाँ मैंने सही सही समझा दिया है। सर्विस का टैक्सेबल नोटिफिकेशन कौन सा सर, ये एग्जाम का है 12 नंबर, एग्जाम का 11 नंबर, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट वर्षा जी, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। 11 नंबर में सीरियल नंबर 24, ओनली द सीरियल नंबर 24 इज असाइन्ड विद द नील रेटेड। उसमें क्या है, सपोर्ट सर्विसेज टू द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के आइटम्स वहां पे नील रेट में है। तो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस आई अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकली इट इज नॉट कमिंग नील रेटेड। अपने प्रैक्टिकल अप्रोच में तो नहीं आते, रेयर केस अलग है। एम आई क्लियर? नंबर कितना बोले सर? सीरियल नंबर 24, नोटिफिकेशन नंबर 11। ओके सर, ठीक है, ओके। यस, नाउ आई एम मूविंग अहेड। अब आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि ये जो बाइफरकेशन इस साल डिमांड किया गया है वो नील रेट में क्या रिपोर्ट करना है, एग्जाम्प्ट में क्या करना है, नॉन जीएसटी में क्या करना है। आई थिंक इट इज क्लियर। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ Yes, पर, yes, अगर सपोज करो कि फाइल करते वक्त फिर भी कोई गलती से फाइल कर देता है उल्टा पुल्टा करके, does it has any implication? से नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं किया उसने भूल से। रेफर सेक्शन 126, हाँ प्लीज रेफर Okay. सेक्शन 126। हाँ ये बहुत अच्छी सेक्शन है, नॉर्मली वी प्रोफेशनल मिस इट आउट। सर आपने कुछ भी गलत किया, अगर टैक्स का इवेजन नहीं है तो डिपार्टमेंट कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन दैट। भैया आप म्यूटेड। हाँ, हाँ, कैन नॉट इम्पोज टैक्स ऑन दैट, ओके ओके, नो पेनल्टी, नो फाइन कैन बी इम्पोज ऑन दैट। सेक्शन 126, 126 नंबर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सेफ है, क्लाइंट सेफ अगर कोई Yes, गलती yes, होगी। yes, yes. But to the extent of compliance, if we can rightly report, then please rightly report. नहीं नहीं, दैट इज 100% करेक्ट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब इतना सबूत हो गया है तो लोगों को लगे ना कि भाई कहीं कुछ गलती होगी तो हमारे ऊपर कुछ पेनल्टी नहीं हो जाए, क्लाइंट को कहीं पेनलाइज नहीं हो जाए, तो Correct. क्लेरिफाई हो जाते हैं ना। My dear friends, if you have any question relating to outward supply, I have covered the basic topic of outward supply along with the changes. एक चीज मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि Please. जो कि शायद तुमने ऐड कर भी दिया होगा, पर मेरा इतने डिस्टर्बेंस हो रहे थे ना फोन के ऊपर, मैं कुछ कर नहीं पाता। मैं मेरे ख्याल से ये जो जीएसटीआर 9 जो फाइल किया जा रहा है, इसमें आउटपुट सप्लाई के अंदर में इनमें जीएसटीआर 1 एंड 3 के अंदर में जो भी मिस्टेक्स की है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का ये मौका है। यहाँ पर आप पेमेंट कर दीजिए, DRC 9 GST के थ्रू पेमेंट कर दीजिए एंड गेट योरसेल्फ बरीड फ्रॉम ऑल द जो भी मिस्टेक्स की, उससे हम आउट हो सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, that I have already told that this is the हाँ। last communication with the department हाँ। for a particular financial year. So whatever mistake you have committed, whether for paying the tax, you please pay through the GSTR 99C to avoid the penalties. Right? अब ये क्वेश्चन प्रमोद क्या होता है ना कि भाई ठीक है मैंने मिस्टेक करी है, वो मिस्टेक को GSTR 99C में करेक्शन कैसे करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। किस टेबल में क्या रिपोर्ट करना है, कैसे ठीक करना है, ये ध्यान देने की चीज है खाली। सो मैं क्या किया हूँ, कुछ कुछ टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, जहां जहां मिस्टेक्स हैं उसको कैसे करेक्शन करना है। इफ एनी पार्टिसिपेंट हैज एनी डाउट रिलेटिंग टू द करेक्शन, यू प्लीज शेयर, आई विल शेयर। मोदी जी यू काइंडली, अच्छा डायरेक्ट मैसेज है, ओके ओके मोदी जी, आई विल रिप्लाई टू यू डायरेक्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट्स हैं,
मैंने आउटवर्ड सप्लाई मेरे हिसाब से मैंने कवर कर लिया, टैक्स पेड मैंने डिक्लेयर आप लोगों को बता दिया। कमिंग टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरे को लगता है ना प्रमोद भैया, जीएसटी में विष्णु भैया आप प्लीज सप्लीमेंट भी इफ आई एम राइट, जीएसटी में सबसे ज्यादा लिटिगेशन आईटीसी को लेकर के है। ओनली वन एरिया वेयर द डिपार्टमेंट ऑलवेज लिटिगेट, बी इट एनीवेयर, फेक इनवॉइस के केस हो, गुड्स के 2A में फिगर नहीं आया, 2B में फिगर नहीं आया, कभी 20% देंगे, कभी 5% देंगे, बाद में कुछ भी नहीं देंगे, जितना 2B में आ रहा उतना ही देंगे, आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लॉ को अगर अपने लोग पूरी चीज को अगर एग्जामिन करें तो मोस्ट लिटिगेटिव पार्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। एकदम सही बात है। सही है। उसको छोड़ करके और कोई दूसरा एरिया नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज take care while filing GSTR 9, particularly table number 6, table number 7, table number 8, table number 12 and table number 13. ये 5 टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके फिनेंशियल से मैच करनी चाहिए। इन एडिशन टू दैट वन एक्स्ट्रा टेबल दैट इज टेबल नंबर 8। सारे लिटिगेशन टेबल नंबर 8 से आएंगे। आपने 2A में डेटा 100 रुपया का आया, क्रेडिट 120 का ले लिया, टेबल 8D में जाके 20 रुपया माइनस आएगा, बस लिटिगेशन आ जाएगा। Am I clear? अब इसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या आए हैं? Probably I think I am able to clarify why that portion of 9 was freezed in table number 9 outward supply का। Next टेबल नंबर 6A में फ्रीज फिगर होता है। ये फ्रीज फिगर आता कहां से है? आईटीसी का। क्या ये जीएसटीआर 1 से आ सकता है? आईटीसी का फिगर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फिगर क्या जीएसटीआर 1 से आ सकता है? नो सर। जिस ओनली सोर्स इज 3B। यस। तो यहां पर रिकंसिलिएशन 3B एंड बुक्स का होना है। जीएसटीआर 1 को यहां से हटा दीजिए, जीएसटीआर 1 का काम अपना हो गया, ठीक है ना। 3B में हमने जितनी भी आईटीसी ली है बिफोर रिवर्सल, वो टेबल नंबर 6A में आता है, करेक्ट है? ठीक है। 6A का ब्रेकअप 6B टू 6H तक हम लोग भरते हैं। वो ब्रेकअप क्या क्या है? B2B सप्लाई क्या है, फर्दर उसका सब ब्रेकअप क्या होता है? इनपुट, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स। 6C 6D में क्या भरते हैं? आरसीएम, रजिस्टर्ड पार्टी से, अनरजिस्टर्ड पार्टी से। इस तरह से सारे ब्रेकअप हम लोग 6B टू 6H में भरते हैं। पहले क्या एग्जम्पशन था? पहले एग्जम्पशन था कि आप इनपुट सर्विसेज को कंबाइन कर सकते हैं। स्टिल दैट एग्जम्पशन इज कैरी ऑन, यू कैन डू इट, करेक्ट। इस साल चेंजेस क्या आया? इस साल सिंगल चेंजेस इन टेबल नंबर 6 इज आपको इनपुट सर्विसेज जो हम लोग या इनपुट गुड्स का जिसमें आरसीएम पे कर रहे हैं, वह रजिस्टर्ड पार्टी का पहले अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड को कंबाइन करके हम लोग दिखा देते थे। नाउ इट इज नीड टू बी बाइफरकेटेड। जो आपका रजिस्टर्ड पार्टी का इनपुट है अंडर द आरसीएम, वो आपको रजिस्टर्ड पार्टी में 6D में दिखाना है और 6C में अनरजिस्टर्ड पार्टी का दिखाना है। इज इट क्लियर? अंडर आरसीएम जो पेमेंट कर रहे हैं, अंडर आरसीएम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका ब्रेकअप हम हाँ। लोग 6C एंड 6D में दिखाना पड़ता है। हाँ। तो 6C और 6D में एक रजिस्टर्ड का एक अनरजिस्टर्ड का है। पहले हम लोग दोनों को कंबाइन करके दिखाने का ऑप्शन हम लोगों को मिला हुआ था। नाउ दैट ऑप्शन हैज बीन विथड्रॉन। ठीक है, टोटल आरसीएम का बैठ के निकाले कि कितना कौन रजिस्टर्ड था कौन अनरजिस्टर्ड था। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आएगा, कि निकालू कैसे, है ना। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज जीएसटीआर 2A डाउनलोड कीजिए। 2A में आपके जितने रजिस्टर्ड पार्टी है ना, वहां पे अंडर आरसीएम वो लोग अपलोड कर रखे हैं डेटा को। उसके साथ में क्रॉस चेक कर लीजिए। आप अगर ज्यादा कर रहे हैं वेरी गुड, कम कर रहे हैं ASFT 10 के लिए रेडी रहिए। सुमित मोदी जी, यस सर, ट्रांसपोर्टेशन का जीएसटीएन है आपके सिस्टम में, जीएसटीएन डाला हुआ है और रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टेशन है, तो रजिस्टर्ड नहीं शो करिए। मैं क्या बोला, प्लीज लिसन। अगर आपका 200 रुपया का बुक्स में रजिस्टर्ड पार्टी का परचेज है और 2A में 80 रुपीज का है, 200 दिखा रहे हैं, झमेला नहीं है। वाइस वर्सा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ जैसा
यहाँ पर रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब वाइस वर्षा के अंदर में मेरा अनरजिस्टर्ड पार्टी का ज्यादा है और रजिस्टर्ड पार्टी पर एज पर बुक्स मेरा कम है। अब मुझे 2A के साथ में बुलाने के लिए मैं उसको चेंज करके ऊपर नीचे करके बराबर कर दूं, क्या फर्क पड़ता है उसमें? सपोज करो 500 रुपया का आरसीएम पेमेंट हुआ, जिसमें 400 रुपया रजिस्टर्ड का है, एज पर माई बुक्स 200 रुपया रजिस्टर्ड का है, 300 रुपया अनरजिस्टर्ड का है। ऑफिशियली आंसर नहीं देंगे भैया, ऑफिशियली हाँ? आंसर नहीं देंगे, ऑफिशियली आंसर नहीं देंगे। ऑफिशियली नहीं दोगे? ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नहीं ठीक बात है, उसमें कोई ये दिक्कत तो, नहीं है, क्योंकि ये तो होना है भैया, ये तो हाँ, होना है, ये हाँ, जो आप बोल रहे हो वो तो होना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना भैया, हमने कई केसेस इस तरह के देखे हैं कि टोटल आरसीएम ही टोटल 2A से शॉर्ट पेमेंट हुआ है, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। आई एम जस्ट गिविंग द हिंट कि वेयर यू कैन फेस द नोटिसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है ना? एक ये टेकरीवाल जी ने क्वेश्चन दिया आईटीसी का, आईटीसी रिवर्स्ड इन 3B इन फाइनेंशियल 21-22 एंड द पेड इज द सेम हैज बीन बिकम नेगेटिव वेदर इन टेबल 9 और कॉलम 2 और जीएसटी 9 पेएबल टू द एक्सटेंट इंक्रीज। सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए, एक बार बोलिए। हाँ मैं समझ सर, गया मैं आपकी बोल रहा प्रॉब्लम। हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर में 3B में हम लोग ने आईटीसी रिवर्स किया और कुछ कारण से वो नेगेटिव हो गया, बिकॉज वो उतना रुपया था नहीं, आईटीसी अवेलेबल नहीं था उस मंथ में, तो अपने को पेमेंट करना पड़ा टू दैट एक्सटेंट उसका उस 3B में। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ सर, आपके साथ क्या हुआ। से एग्जांपल जनवरी 22 में आपने आईजीएसटी का इनपुट था 500 रुपया, रिवर्सल किया 700। करेक्ट। तो 200 रुपीज आपका आउटपुट टैक्स में जुड़ गया। करेक्ट। और वो 200 रुपीज आपका जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 9 में पेड में दिखा रहा है। करेक्ट। बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर आउटवर्ड सप्लाई। ओके, बट दैट माने उसके लिए मुझे टेबल 9 का जो कॉलम 2 है पेएबल। आई एम कमिंग टू दैट सर, आई एम कमिंग टू दैट। ओके। आपका टेबल नंबर 6 में 6A में फिगर कितना आ रहा है? 500 रुपया आ रहा है। हाँ। ठीक है। हाँ। 7 में आपको रिवर्सल 700 दिखाना पड़ेगा। हाँ। वहां 200 रुपया का नेगेटिव होगा। बट सर रिवर्सल टेबल 7 में दिखाएंगे ना, 7F हाँ, में। रिवर्सल 7 में दिखाना सर। 7F में, 7H में, H फॉर हरियाणा, H फॉर हरियाणा, उसमें पूरा दिखाएंगे तो फुल 700 पूरा का पूरा। ओके। ठीक है। आपका 7J में -200 हो जाएगा। ओके। ये जो -200 है वहां पे टेबल नंबर 9 में आपको डिफरेंशियल 200 रुपया पेमेंट दिखेगा। अच्छा। क्योंकि टेबल 4 में आपने जो आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट किया वो 0 है। हाँ। टू दैट रेस्पेक्ट, तो ये हाँ, 200 रुपया वहां से पेमेंट दिखेगा आपको। हाँ। मिल गया? तो मैंने पेएबल को इंक्रीज नहीं करना है, सीधा सा बात यही है नो ना? नो नो नो, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड विद योर आउटवर्ड सप्लाई सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके सर, ओके, दैट मैंने वही कंफ्यूजन था मुझे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्लीज माइंड इट, टेबल नंबर 4, 5, 10, 11, टेबल नंबर 9 and 14, these 6 tables are only for the outward supply, not for the input at all. ओके। क्लियर हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन है मोदी जी का, सुमित जी का, वेयर वी शो आरसीएम ऑन ओशियन फ्रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सर ये टेबल नंबर 6 and 7 में है सर, 6 में है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। आपने 3B में लिया है ना क्रेडिट इसका, सुमित जी? तुम जाओ। वर्षा जी ये प्लीज अनम्यूट, आपका क्वेश्चन बताइए मेरे को। सर आईजीएसटी पे कर दी थी अंडर द हेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 21-22 में, उसको करेक्ट किया है 3B ऑफ 22-23 का कोई मंथ में सर, तो उसका क्या डिस्क्लोजर करना पड़ेगा सर 9 और 9C में? राइट, हाउ टू करेक्ट इट, हाउ टू करेक्ट, करेक्ट, राइट। यस सर। आप इसको क्या करिए ना, इसको आप अदर वे राउंड सोचिए, आप देखिए खुद आंसर दे देंगे। आईजीएसटी आपने पेड किया, होना चाहिए था आईजीएसटी पेमेंट, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। करेक्ट। तो दैट मींस आपने सीजीएसटी एसजीएसटी ज्यादा पे किया। करेक्ट सर। उसको आपने नेक्स्ट ईयर में रिवर्सल कर लिया। करेक्ट सर। तो अगर मान लीजिए आईजीएसटी को भूल जाइए एक बार,
अब क्या करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी जो आपने ज्यादा पे किया, टेबल नंबर 4 में ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है, हाँ उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। टेबल नंबर 11 में आपने माइनस दिखाएंगे वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी में, हाँ वो ऑटोमेटिक, क्योंकि 11 नंबर तो माइनस होता ही है ना, करेक्ट। हाँ हाँ सर। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का पेमेंट मिल गया वहां पे। हाँ और आईजीएसटी को टेबल नंबर 10 में दिखाइए, ओके करेक्ट है। करेक्ट सर। और टेबल नंबर 14 में जब आप जाएंगे, हम्म वहां पे नेट ऑफ करके इम्पैक्ट जीरो हो जाएगा अपने आप। करेक्ट। वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी का अलग अलग फिगर नहीं मांग रहा है ना, मांग रहा है हाँ वहां पे, हाँ सर वहां पे देखिए मांग रहा है सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग 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 फिगर। अलग मांग रहे हैं। यस सर। आईजीएसटी को जो पे आपने बाद में किया वो पेमेंट में दिखाइए, और हाँ सीजीएसटी को जो रिवर्सल किया टेबल में उसको माइनस करके दिखाइए। ठीक है। नाउ 9 + 14 विल बी इक्वल टू योर बुक का फिगर, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस सर। हो गया। हाँ सर 9 + 14 यस। हाँ 9C ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, ओके वही। क्योंकि 9C में टेबल नंबर 9Q में जो फिगर जाता है दैट इज कमिंग फ्रॉम 9 + 14। ओके अरे ठीक है। पेड का फिगर सर। नो, टेबल का फिगर। 9 + 14। हाँ, और आप देखिए टेबल नंबर 9 जो होता है ना, हम्म मैं क्यों बोला कि प्रमोद भैया फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कि सर प्रमोद 9 वाला कौन सा जो पेड फिगर है 9 में? पेड नहीं, पेबल वाला फिगर जाता है, मैं वही बता रहा पेबल वाला हूँ। ओके। हाँ प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। प्रमोद भैया जीएसटीआर 9C नहीं भर पाएंगे, क्योंकि टेबल नंबर 9Q में, टेबल नंबर 9Q ऑफ 9C वहां बोला है टैक्स पेड एज पर जीएसटीआर 9, बट फिलअप करना पड़ता पेबल, पेड नहीं। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसलिए मैंने बोला प्रमोद भैया फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। ये पेड खोजेंगे, भरना पेबल है, लेगा नहीं सिस्टम। क्लियर हो गया? करेक्ट सर। क्लियर क्लियर। बहुत सारे चैट बॉक्स में क्वेरी आ गए, काइंडली 1 by 1 पूछते जाइए सर, जो क्वेरी पढ़ के आंसर करने में गड़बड़ हो रहा है। सर मेरा एक क्वेरी है हाँ सर, आईटीसी अच्छा, एक काम करें क्या मुकेश जी, एक काम करें, हाँ सर मेरी 5-6 स्लाइड और बची हुई है। आराम से सर, आप पूरा ले लीजिए उसके बाद पूछेंगे। यस सर प्लीज। प्लीज। मेरे हिसाब से मैंने इनपुट आउटपुट टैक्स पेड ऑल आर कवर, ठीक है। जो चेंजेज आए हैं वो मैंने बता दिया, जो ऑप्शनल है वो मैंने बता दिया, करेक्ट है। एक नया चेंजेज आया है, आउटवर्ड सप्लाई का एचएसएन कोड रिपोर्ट करना, ओनली आउटवर्ड सप्लाई, माइंड इट। टेबल नंबर 17 इज नाउ मैंडेटरी। टेबल नंबर 17 में आपको आउटवर्ड सप्लाई पूरा फिलअप करना है। जब आप ये फिलअप कर रहे हैं प्लीज टेक केयर, आपका 1 पैसा का भी डिफरेंस होगा ना, सिस्टम नहीं लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सपोज करिए करेक्ट सर। आपका टेबल नंबर 4 में आउटवर्ड सप्लाई है 500 रुपीज, ठीक है। 500 का 5% टैक्स 25 रुपीज, 12.5 होगा दोनों जगह सीजीएसटी एसजीएसटी में। आप 12.49 भरिए, सिस्टम नहीं देगा। क्या करें इस केस में? माई हम्बल सजेशन इज टैक्स जरूर सेम रखिए, टैक्स को चेंज मत करिए। टैक्सेबल सप्लाई को बैक कैलकुलेशन करके उसको मिला दीजिए। 5-10 रुपया का टैक्सेबल सप्लाई में डिफरेंस आता, ज्यादा नहीं आएगा। राउंडिंग ऑफ के चक्कर में प्रॉब्लम हो रहा है वो। एक अभी हमारे क्लाइंट का आज लड़के ने बताया, चेक कर रहा था, जीएसटीआर 1 का जो समरी आती है उसके अंदर में एचएसएन वाइज सप्लाई जो दिखाया गया वो टोटल एब्सर्ड फिगर है जो एक्चुअल होना चाहिए। इसका क्या इम्पैक्ट है? पहले क्या दिखाया भूल जाइए, हाँ पहले क्या दिखाया भूल जाइए, अभी एक्चुअल रिपोर्ट कर दीजिए। अभी एक्चुअल रिपोर्ट नहीं, हमने एक्चुअल दिखाया, जीएसटीआर 1 में हमेशा एक्चुअल है, लेकिन ठीक है। जो समरी ऑफ जीएसटीआर 1 जो निकलती है डिपार्ट सिस्टम से, वो हाँ समरी के अंदर में एचएसएन वाइज सप्लाई गलत दिखाई हुई है। भैया, जीएसटीआर 9 में अभी जो करेक्ट है वो रिपोर्ट करिए, वो सप्लाई क्या निकल रहा है रिपोर्ट कर दें। अगर आपने सही सही भरा है तो सही सही छोड़ भर दें दें। उसको, यस, भूल जाइए, ठीक है ठीक। क्योंकि 9 जो है, 9 एक करेक्टिव फॉर्म है, उसमें गलत रिपोर्ट करना मेरे को कोई सेंस नहीं लगता। ठीक है ना। हाँ, अब आते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओवर हियर इज कि टेबल 10 टू लेके 14 जो मैं बार बार आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं, ये पोर्शन कौन सा है? ये पोर्शन है इनपुट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, व्हाटएवर इट इज, बिलोंगिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22,
but reported in the returns of 22-23 subsequent months में जो रिटर्न हम लोग रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि सर मेरे को ऑथराइज कौन किया कि मेरी जनवरी की सेल है, मैं जनवरी में रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, 3B में अब मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं अप्रैल मई में जाके जो मैं 3B में रिपोर्ट कर देता हूँ, हु इज ऑथराइज्ड यू? किसने कहा आपको ऐसा करने के लिए? किसने कहा? मुझे एक चीज बताओ कि अभी भी वो सिस्टम होता है क्या? क्योंकि जब मैं GSTR 1 फाइल करता हूँ मैं, उससे ही मेरा 3B ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाता है। तो आज के दिन तो ऐसी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए जनरली, अगर मेरा GSTR 1 सही गया हुआ है। अभी भी मिस्टेक से एडिट कर देते हैं भैया, एडिट कर देते हैं। मेरे पास GSTR 1 में मेरा सप्लाई राइटली रिपोर्टेड है, 3B में मेरे पास टैक्स का पैसा नहीं है, तो एक बार कम करके रिपोर्ट कर दिए, बाद में कर देंगे। वो तो बात कर रहे थे नहीं, अच्छा जो भाई, गलत आज सही के दिन नहीं है, लोग कर रहे हैं। मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, बात यही बात है। अगर है तो आप जो सब्सिक्वेंट मंथ में जो रिपोर्ट करते हैं, व्हाट इज द लॉजिक, हु हैज परमिटेड यू? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन द सर्कुलर नंबर 26/26 2017, 29 दिसंबर 2017 का है। इट ऑथराइज यू टू रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन इन द सब्सिक्वेंट मंथ्स। Accordingly, part 5 of GSTR 9, that is contains table 10 to table 14, is given there. Means the transaction which belongs to 21-22 reported in subsequent months is required to be reported here. And these transactions are linked with only GSTR 3B. Mind it, only linked by GSTR 3B. Why I am saying so? I am giving one of the example. Suppose करिए आपने जनवरी महीना में सेल करी, GSTR 1 में रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन 3B में टैक्स सही से डिस्चार्ज कर दिया, तो क्या पार्ट 5 में आएगा? I don't think so. नहीं आएगा सर, नहीं आएगा राइट। क्योंकि आपको अगेन इंस्ट्रक्शन नंबर 4 ऑफ GSTR 9 देखिए, क्योंकि आपने टैक्स पिछले साल दे दिया है, तो टेबल नंबर 4 को एडिट कर लीजिए। आई एम गिविंग द सेकेंड एग्जाम्पल, रिवर्स। GSTR 1 सही गया, बुक्स के साथ मैच कर रहा है, 3B में टैक्स शॉर्ट है, इस बार टेबल 4 सही भर के आया है, उसको ठीक कीजिए, बुक से मिलाइए, मतलब 3B से मिलाइए, और टैक्स को टेबल नंबर 10 एंड टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट कीजिए। क्लियर हुआ? करेक्ट सर। टेबल नंबर 15 ऑप्शनल पहले भी था, आज भी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 16 अगेन ऑप्शनल पहले भी था, आज भी ऑप्शनल है। So I am not discussing of these two tables. Table number 17 I have already discussed. Table number 18 not required, optional है। Any question relating to GSTR 9? Otherwise I will move for GSTR 9C. सर वर्षा सर, जो मेरी क्वेरी थी जिसमें IGST की जगह CGST SGST पे हो गया है, उसमें टेबल नंबर 4 तो सर GSTR 1 से एकदम करेक्ट ही आएगी। आपने टेबल नंबर 4 अगर सही देखिए, क्या हुआ ना, लेकिन 4 से करेक्ट आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन टैक्स आपने सही नहीं भरा ना। हाँ, टैक्स भरा नहीं है सही, करेक्ट। इसीलिए आप इंस्ट्रक्शन नंबर 4 देखिए एक बार। ठीक है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 बोलता है कि आपको टेबल नंबर 4 GSTR 1 से रिकमेंडेटरी फिगर है, सब्जेक्ट यू हैव करेक्टली डिस्चार्ज द टैक्स। ओके, तो इट शुड बी, जो करेक्ट होना चाहिए वो टेबल 4 में आना चाहिए। राइट। ओके, टेक्निकल पॉइंट क्या है ना कि टेबल 4 का जो टैक्स है वो टेबल 9 से मिलना चाहिए, और टेबल 10 का जो टैक्स है वो टेबल 14 से मिलना चाहिए। ओके ओके, तो पहले टेबल 4 में करेक्ट फिगर आना चाहिए और फिर 10 और 11 में प्लस माइनस करना है। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए उसको जब टोटल को आप जब फिलअप करेंगे ना, फिलअप करके जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ में देखिए क्रॉस चेक करिए, बुक से मैच कर जाएगा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके। नाउ कमिंग टू GSTR 9C। GSTR 9 अगर आपने प्रॉपर बुक से भर दिया है तो 9C भरने में मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा सर, कि वो सारा रिकन्सिलिएशन 9 में कर दिया आपने। अगेन इट इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से पार्ट बने हुए हैं। एक मेरा क्वेश्चन था 9C के पहले है, हाँ यस प्लीज, कि GSTR 9 जो है आज के दिन में जरूरी है जिनका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, ठीक है,
लेकिन सो मोटे भी तो लोग फिलअप कर सकते हैं जिनका लेस देन 2 करोड़ है, बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। It is an शुड वी optional. डू इट और नॉट डू इट? मैं तो Yes. समझ गया। हाँ, यस भैया, आई एम टेलिंग यू व्हाई। अगर आपका जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और बुक्स तीनों अगर सही है तो हाँ। 9 भरने की जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है ना। अगर आपको टैक्स डिस्चार्ज करना है विच हैज नॉट बीन डिस्चार्ज अर्लियर, नाउ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्चार्ज, देन यू प्लीज फिल जीएसटीआर 9। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन उस अगर मेरा सब कुछ कंप्लीट रेट सब सही है, हमारा कहीं पर कोई टैक्स डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है, still if someone wants to do it, we should do, not no. He can do, but it is not suggested, but it is not, I mean, this is totally the call of the SSC. No need to file. नेचुरली अगर कहीं पर कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी है और हमको टैक्स डिस्चार्ज करना है तो वी विल ऑलवेज सजेस्ट टू फाइल 9, क्योंकि इसमें हमारा डिपार्टमेंट का कल के दिन कोई इंटरेस्ट पेनल्टी का चक्कर नहीं रहेगा, हमारी सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। राइट, परफेक्टली ऑल राइट। सर 9 से रिलेटेड क्वेरी अपने बाद में लेंगे क्या? 9C 9C दोनों से बाद में ले लेंगे सर, एक बार 9C कवर कर लें। मैं तुमसे इसलिए क्वेश्चन पूछा ना कि बहुत सी जगह लोग गलतियां कर देते, छोड़ देते, ठीक है कौन पकड़ेगा, हमको 9 टू फिलअप करने की जरूरत नहीं है। That is the reason I raised this query कि whether we should do it or not. भैया For you to अगर elaborate on this subject. ट्रैफिक सिग्नल आपने ब्रेक करके आप निकल गए तो आपको लाइसेंस थोड़ी नहीं मिल गया, हमेशा हमेशा तोड़ते चलिए। हाँ वही बात है ना, लोग सोचने लगते हैं ना ठीक है कौन देखेगा वो आती है, लेकिन वो- अभी सिस्टम ऐसा है ना कि कुछ और कहीं ना कहीं आदमी पकड़ा ही जाता है। बिल्कुल 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 भैया। Coming to GSTR 9C, my dear friends, GSTR 9C is required to be filed the person whose aggregate turnover exceed 5 crores and it is self-certified form. No chartered accountant signature or cost accountant signature is required to file the GSTR 9C from the financial year 2021 to 21-22 on onwards. Correct? 9C जो को बनाना है, I suggest my friends कि पूरा 9 को आप properly reconcile करके ही फाइल कीजिए, so that there should not be any mistake with respect to 9C. करेक्ट है? अब 9C में जब हम लोग देखते हैं तो टेबल 5 to 8 जो है वो टर्नओवर का टेबल है और 9 जो है टैक्स पेड का टेबल है। 5 जो है वो 5 क्या है? 5 ग्रॉस टर्नओवर लेता है, 7 टैक्सेबल टर्नओवर लेता है, यही दोनों में गैप है। इसको रिकंसिलेशन करना है। चैट बॉक्स में फटाफट डालिए कितने लोगों को बीआरएस याद है। टैली से जो बीआरएस नहीं करते, मैनुअली जो बीआरएस करते हैं, वो 5 को और 7 को फटाफट भर लेंगे। कितने लोगों को याद है? विष्णु भैया हंस रहे हैं। आपको तो याद होगा, आप लोग तो, हम लोग तो पोस्टिंग का काम किए हुए बनाए हुए हैं सारा। इसलिए मैंने कहा, इसलिए आपको याद होगा। न्यू जनरेशन में तो टैली से हम लोग बीआरएस निकालते हैं, तो हम लोगों को तो याद भी नहीं है कैसे बीआरएस बनाते हैं। आप लोग फटाफट ये रिकंसिलेशन करेंगे। 5A में टर्नओवर एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स डाल दिया। 5Q में वहां का जो टर्नओवर है, जो जीएसटीआर 9 फाइल करने के बाद में 5 फिगर वहां से कैच होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां सिस्टम देता है, उसको डाल दिया। उसके बाद दोनों के जो डिफरेंस के रीजंस हैं वो डिफरेंट टेबल्स डाले हुए हैं, उसमें डालने के हैं। सिंपल, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है। जैसे था लास्ट ईयर वैसे का वैसे ही एज इट इज कैरी ऑन हो रहा है। फर्दर कोई मतलब विड्रॉ नहीं किया गया है। आप 5A में डालिए, 5Q में फिगर डालिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो सिंपली आप 5O में डाल के आगे बढ़ सकते हैं। बट माई सजेशन टू डियर फ्रेंड्स इज डोंट टेक ए रिस्क ऑफ दिस। अदर जो एडजस्टमेंट्स हैं 5O वाला, उसको लिस्ट टू लिस्ट यूटिलाइज कीजिए। जो वो कब डालते हैं 5O में? जब आप मिला नहीं पा रहे हैं। जब आज नहीं मिला पा रहे हैं, डिपार्टमेंट जब क्वेरी करेगा तब क्या मिला के दे पाएंगे आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आज मिला के जो प्रॉपर हेड है उसमें अगर आपने डाल दिया फिगर को, तो ये क्लैरिटी रहेगा कि हाँ ये इस चलते था। क्योंकि 5O में डाला हुआ फिगर, माई हम्बल सबमिशन इज देयर इज मोस्ट चांसेस कि फाइल स्क्रूटनी में आएगी। ठीक है ना? 9 में टैक्स पेड का रिकंसिलिएशन है। इट इज वेरी सिंपल, नो नीड टू डिस्कस फर्दर। पाटोदिया जी आप अनम्यूट करके एक बार बात कर लीजिएगा ना, आई विल टेल एवरीथिंग। बस 1 या 2 स्लाइड और बचे हुए, उधर में उसके बाद क्वेश्चन आंसर ले लेंगे अपन। रिकंसिलिएशन आईटीसी का टेबल नंबर 12 में है, कोई चेंजेस नहीं है, सारे फिगर भरने हैं। टेबल नंबर, एक बड़ा अच्छा टेबल था सर, टेबल नंबर 14,
GSTR 9C का, यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाइज ITC एंड परचेज का फिगर को डालना होता था इनवर्ट सप्लाई को। सर उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ हुआ है क्या, कुछ करना है उसमें? नहीं, मेरे ख्याल से optional ही उसमें है। कुछ चेंजेस है नहीं। वो ऑप्शनल था, ऑप्शनल है। हाँ, ये ठीक है ऑप्शनली रहना चाहिए लेवल पे भैया। भैया, ये क्लाउज 44 और 3CD के साथ में लिंक किया हुआ फिगर है। लेकिन लकली अभी क्लोज 44 के अंदर में, आईटीसी के अंदर में जो आपने इनकम टैक्स में देते हैं, उस पे इतना इस हिसाब से डिटेल नहीं मांगा उन्होंने अभी तक, आइटम वाइज नहीं मांगा है। जिस दिन मांग लेगा उस दिन तो वो अलग से एक ऑडिट हो जाएगी फिर। भैया क्या है ना, ये देखिए विद ड्यू रेस्पेक्ट, मेरे को नहीं लगता कि क्लाउज 44 में जो आइटम्स की और जो रिक्वायरमेंट्स है डिटेल्स की, वो अपने करेक्टली रिपोर्ट कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं हो पाएगा वो। नहीं कर पाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? ठीक है, आप 100% अपने अकाउंट सही सही बना रहे हैं। मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वहां पे रजिस्टर्ड इनवर्ट सप्लाई का डिटेल्स मांग रहे हैं, जिससे आपने परचेज किया रजिस्टर्ड पार्टी से, करेक्ट? आपका इंप्लॉई ट्रेन से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया, आपने सारा एक्सपेंडिचर कहाँ डाला? ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर में। कोई वेंडर बुकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड पार्टी है कि नहीं है? रेलवे इज रजिस्टर्ड पार्टी। आपके बुक्स में वो एकदम है। ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं है एज ए रजिस्टर्ड पार्टी। ना नो, इम्पॉसिबल है वो, जो वो मांगा जाए तो इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल है। Yes. सो मेनी रीजन से इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? एकदम। So there is nothing else in respect of 9 and 9C. So I would like to take the question answers. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जिनको क्वेश्चन पूछने प्लीज अनम्यूट कीजिए एंड टॉक टू मी। सुमित जी, सुमित मोदी जी, आपने 545 पे क्वेश्चन डाला था। एनीवन मुकेश जी, मुकेश टेकरीवाल जी। Am I audible? Yes, you are audible. तो सर एक्चुअली जो 3B में हम लोग RCM का इनपुट लेते हैं, हाँ वो टेबल 8B में आता नहीं है। इट इज नॉट कमिंग इन 8B। सर, टेबल 8B में फिगर जो आता है ना, वो 6B और H का है। प्लस 6H आता है, 6B प्लस 6H आता है। हाँ, तो फिर वो RCM का जो इनपुट है वो कहाँ दिखाएंगे? सर वो 8A में भी नहीं है 8A में भी नहीं है वो। ना। 8A में तो 2A का फिगर है ना। 2A में RCM को हटा करके है। वो RCM से हटा के क्या है? यस, ओके, तो मैंने वो लफड़ा ही नहीं है मैंने। वो लफड़ा ही नहीं है। आप 8A को डाउनलोड करके देखिए, उसकी एक्सेल शीट मिलती है आपको। हाँ, 2A का तो एक्सेल शीट मिलता है। उसमें देखिए, यानी 8A की भी एक्सेल शीट मिलती हाँ, है। 8A की भी एक्सेल शीट अभी आ गया लास्ट 2 साल से, करेक्ट। हाँ, तो उसमें नहीं है, देखिए RCM नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि सर जो 2B के हिसाब से हमने सपोज जनवरी टू मार्च 2B के हिसाब से हमने 3B भरा था, ITC अवेल किया था, बट बुक्स में मेरा ज्यादा था। तो वो तो हम फिर टेबल 8 में 8C में रिपोर्ट करेंगे और टेबल 13 में रिपोर्ट करेंगे और 9C का 12 में रिपोर्ट करेंगे, 12B में 12C में रिपोर्ट करेंगे सर। 12C में। हाँ, हाँ मैंने वो वहां पे उल्टा है, मैंने वहां 12C में है, हाँ जी, यहाँ पे 13 में है। हाँ जी, यहाँ उल्टा, वहां ठीक है। लेकिन बॉस विकास ऐसा है कि अगर हमारे बुक्स में नेक्स्ट ईयर के अंदर में रिकॉर्डिंग हुई है और इस साल में हमने आईटीसी ले लिया ऑन द बेसिस ऑफ 2A 2B के हिसाब से, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द गुड्स एंड सप्लाई। नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन दूसरा था। क्वेश्चन मेरा दूसरा था। उनका क्वेश्चन दूसरा है। ही मेरा सेइंग क्वेश्चन कि है कि हमारा सर बुक्स में हो गया है बट 2B में नहीं आया है। करेक्ट। तो 3B अच्छा। में तो हम रिपोर्ट किए 2B के हिसाब से, तो हम 8C में रिपोर्ट करेंगे और 13 में रिपोर्ट करेंगे, और वहां पे 12B है कि C है? वहां पे 9C में 12C है, वहां जी। रिपोर्ट करेंगे। जी, देखिए सर, मैं बताऊं आपको, 8C इक्वल टू 13 इक्वल टू 12C 8C इक्वल टू 13 इक्वल टू 12C ऑफ GSTR 9C। ओके, ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट मुझे यहाँ RCM, पर एक्सेप्ट sorry, RCM को छोड़ करके।
ठीक है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बोलिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने फॉर्म 9(9)(c) फिलअप करने के वक्त में आईटीसी का कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, जिससे कि मैंने यही जो बात हो रही कि 2B में नहीं आया, हमारे बुक्स के अंदर में हमने GSTR 9 में हमने रिपोर्टिंग गलत की। कैन दे डिनाई मी द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द नेक्स्ट ईयर? नहीं, उल्टा पुल्टा मीन्स व्हाट यू हैव डन? मतलब जो बात कर रहे हैं ना कि हमारे बुक्स के अंदर में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम किया हुआ है और हमारी एक्चुअल में इनपुट टैक्स क्रेडिट आई हुई है, लेकिन हमने 3B के अंदर में हमने उतना ही क्लेम लिया जितना हमारा 2B में आ रहा था। नेचुरली टू दैट एक्सटेंट हमने GSTR इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया, जो हम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो इस साल की जो फॉर्म 9 फिलअप की है, उसके अंदर में जो अमाउंट फिगर लिखना चाहिए टू बी क्लेम जितना नेक्स्ट ईयर, वो हमने गलत लिख दिया। करेक्ट। तो इससे हमारा नेक्स्ट ईयर का क्लेम No, sir. GSTR 9 is merely a reporting form. No credit can be denied. No credit can be availed through the GSTR 9. बस ठीक, करेक्ट, ओके, थैंक यू। नहीं, मैं ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, लीजा, वेरी 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 रिलेवेंट। Yes. हेलो सर। Yes, please. मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अपने जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स, हाँ उस पे जो अपने RCM देते हैं ना 10% वैल्यू पे, हाँ उसको अपने कहाँ रिपोर्ट करेंगे, रजिस्टर में कि अनरजिस्टर में? सर, वो अनरजिस्टर्ड सप्लाई है। अनरजिस्टर में जाएगा सर? बिल्कुल, क्योंकि वो क्या ना, वो सेपरेट कॉलम है सर उसके लिए। आपका 6C और 6D का है ही नहीं वो। अच्छा, उसका आपको- अलग कॉलम है क्या? हाँ जी 6E है, देखिए 6E। 6E। हाँ, अच्छा, इम्पोर्ट ऑफ और गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अच्छा, ओके सर। और एक चीज सर, जैसे कि अपने जो ये जो इंटरेस्ट इनकम होता है ना, मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह का, हाँ तो वो जैसे एग्जाम्प्ट है, तो वो अपने जैसे रिटर्न में नहीं दिखा रहे हैं। तो जैसे हाँ। 9 में अगर हम अभी लोग दिखा दिखाएंगे, दीजिए, 5D में दिखाइए उसको। GSTR 9 का 5D में 5D जैसे में। दिखाएंगे तो वो लोग जैसे अभी जैसे ASMT 11 ASMT 10 में सर, वो वेस्ट बंगाल के स्टेट के ASMT 10 डिफॉल्टेड है। हाँ, वो प्रपोर्शनेट कर दे रहा है, उसको बोला उसका जी रिप्लाई चलो। देना पड़ेगा आपको। तो वो क्या इंटरेस्ट रिवर्स इनकम पे करना कॉमन पड़ेगा? क्रेडिट रिवर्सल नहीं होता है। अच्छा, उसका मतलब कॉमन क्रेडिट रिवर्सल नहीं होता है? नहीं होता सर। एक्सप्लेनेशन 2 चैप्टर नंबर 5 रूल्स पढ़िए उसका, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2। ओके, नहीं वो लोग एक्चुअली बोले कि रिवर्सल करना ही पड़ेगा आपको। नो सर, उनको रूल बताइए। मैं आपको बोला ना, एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 टू चैप्टर नंबर 5 ओके सर, थैंक यू। रूल्स का। ओके सर। इंटरेस्ट इज नॉट कवर देयर। ओके सर, थैंक यू। हेलो, मेरा एक सवाल है यस मैम। सर। टेबल नंबर 6 में हम लोग जितना आईटीसी है साल भर का वो लेते हैं, और टेबल नंबर 7 में हम लोग आईटीसी जितना रिवर्सल है वो लेते हैं, लेकिन टेबल नंबर 8 पे हम लोग 2A से कंपैरिजन करते हैं तो वो उसमें सिर्फ टेबल 6 का आईटीसी पकड़ता है, उसको रिवर्सल से तो लेस करता ही। 8D में जो माइनस आ रहा है ना, वो टेबल नंबर 7 में जो रिवर्सल किया उसे क्रॉस चेक होता है। अच्छा, ओके, मतलब जितना डिफरेंस टेबल 8 में आ रहा है वो हमारा रिवर्सल से मैच करना चाहिए जो हमने टेबल 7 में दिखाई है। राइट है। आप टेक्निकल पॉइंट समझिए मैम। 6A, सपोज करिए यू हैव टेकन द क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज एंड लेटर ऑन यू रिवर्स 20 रुपीज, राइट? हाँ 6A will cover the 100 हाँ and 6B you will feel 100, हाँ correct? In that हाँ। case 100 rupees flow to the 8B, 20 rupees you have reported under reversal in your 3B, that हाँ। 20 rupees need to be reported in 7H, यस, and this 7H will match with the 8D. ओके सर, एक और डाउट था मेरा। जो टेबल जो हम लोग GSTR 9C भरते हैं, जिस टेबल में हम लोग आईटीसी का बाइफरकेशन देते हैं कि कितना परचेज पे आईटीसी लिया, कितना कैपिटल गुड्स पे, कितना रॉयल्टी पे, कितना रेंट पे, सर इसमें क्या टेबल उसका नंबर 14 टोटली ऑप्शनल है, डोंट फिल इट। ओके, कुछ भी सर उसमें फिल करना इज नॉट मैंडेटरी। ब्लैंक। ओके सर। एंड सर एक और डाउट था मेरा, जो हम लोग एफडी पे जो जैसे इंटरेस्ट लेते हैं, वो सर हम लोग के पीएल में तो सर मैंने इनडायरेक्ट इनकम में जाता है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाता नहीं है, पीएल में जाता है। और सर एफडी इंटरेस्ट पे क्या जीएसटी तो सर लगता नहीं है, तो उसको हम लोग GSTR 1 और 3B दोनों में नहीं दिखाते हैं, लेकिन अभी आपने बोला ना कि उसको 9 में लेना चाहिए, तो सर इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? 5D में जाएगा, GSTR 9 के 5D में जाएगा। ओके।
और GSTR 9C करते समय में 7B में जाएगा, वो माइनस होकर टैक्सेबल से ऑटोमेटिकली नेट हो जाएगा। 5D और 9 का 5D बोला और 7B ऑफ GSTR 9C। 7B। यस ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आता है सर कि आज के दिन ऑडिट के अंदर में लोग पकड़ रहे हैं कि जनरली ऑडिट जब भी हो रही है सब जगह, कि जो भी एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई के अंदर में हमारी नेचुरली इंटरेस्ट इनकम भी आ गई हमारी। अब इसके ऊपर में जो है परसेंटेज लगाकर हमको ITC रिवर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ITC उस पर रिवर्स होना चाहिए। नहीं तो हम होगा लोग भैया, कभी- नहीं होगा। हाँ? प्लीज क्यों? गो थ्रू एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 इन चैप्टर 5 ऑफ रूल्स। ITC का जो चैप्टर है, अच्छा आप देखिए रूल 45 के नीचे में एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। अच्छा ठीक है। उसमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया है फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन क्रेडिट रिवर्सल। अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। सर जब हम लोग HSN वाइज समरी भरते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का जो हिस्सा उसमें मैंडेटरी हो गया है, तो हम लोग 4 डिजिट, सपोज टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो नीचे है तो 4 डिजिट है, तो हम लोग 4 डिजिट अब डाल रहे हैं तो वो 8 डिजिट मांग रहा है, माने वर्ड 8 डिजिट माने वो चूज करना पड़ रहा है वहां पे। हाँ 8 डिजिट चूज करना पड़ रहा है। तो बट 8 डिजिट में तो उसका और फाइनल पॉइंट हो जाता है, तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में कौन सा करना है। जिसमें रेट सिमिलर उसमें अदर्स में लेके निकल रहे हैं हम तो। अच्छा रेट पहले चेक करना पड़ेगा फिर। रेट सारा चैप्टर का ऑलमोस्ट सेम सही है। अच्छा ओके। सर जो ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको कहाँ से करना रहेगा सर? फिर 9 में ले या रिकंसाइल करें 9C में? बता रहा हूँ सर, ट्रेड डिस्काउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर रखा है, दैट इज डिस्काउंट ऑन परचेज। जी सर। ये आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। हाँ तो 5A में नहीं दिखाना, GSTR 9C करते समय 5A में दिखाना ही नहीं है। सर क्रेडिटेड एज अदर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो उस समय इश्यू आ रहा है सर। नहीं सर, आप टेक्निकल पॉइंट को समझो। आप एक बार GSTR देखिए, ये आउटवर्ड सप्लाई तो है नहीं, तो आपका GSTR 9 में नहीं आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में सर क्रेडिट कर रखा है ना सर? सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट कर रखा है। हाँ। आप प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी चीज क्रेडिट कर रहे हैं, डज इट मीन दैट यू हैव टू रिपोर्ट इन 9 और 9C? नहीं सर। टेबल नंबर 5A में माइनस करना, उसको दिखाना ही नहीं है 5A में। ओके ओके सर। ठीक है ना? हाँ सर। प्रोज एनी क्वेरी? नहीं हमारी तो कोई क्वेरी नहीं है, बाकी लोग चैट सब बॉक्स अभी में क्वेरी आ रही हैं, चैट बॉक्स में क्वेरी हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेरी टू मी डायरेक्टली। ये किसी ने पूछा है कि सर सप्लाई ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू बी रिपोर्टेड अंडर व्हिच हेड ऑफ टेबल 5? एग्जाम सप्लाई नॉन टैक्सेबल एग्जाम। नॉन टैक्सेबल एग्जाम। सर यस मैम। तो सेल ऑफ सोलर पावर जो है वो किस में जाएगा? मतलब एग्जाम सप्लाई दिखाएंगे, नॉन GST सप्लाई में? नॉन GST सप्लाई शेड्यूल 3 सप्लाई है। ओके एंड सर, एंड व्हाट अबाउट ड्यूटी ड्रॉबैक इनकम एंड MEIS सेल? हाँ लाइसेंस ड्यूटी, देखिए लाइसेंस सेल जो है ना, वो चैप्टर नंबर 47 में कवर होता है। इसमें GST में इट इज एग्जाम सप्लाई, सेल ऑफ MIS लाइसेंस से जो आता है। ठीक है? ड्यूटी ड्रॉबैक कैश पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी। हाँ ये मनी टर्म्स में कहीं नहीं दिखाना, 5A में भी नहीं दिखाना है। सर 9C में दिखाएंगे ड्यूटी ड्रॉबैक इनकम No, reconciliation duty के time drawback. See, duty. What is duty drawback? Duty drawback. You are getting the cash incentive from the government, पे, right? and that is not part and parcel of the supply of goods or supply of service. So, in chapter Okay. table number 5A, you please deduct them itself. Only sale sir, of can you MIS. Only sale of MIS will be reported in 5B of GSTR 9 and 7B of GSTR 9C. Okay. Are you getting my point? Okay, sir, I got your point, but can you repeat about the MEIS license duty drawback you told? See,
there is difference between duty drawback and MIS license. Correct? MIS license is a goods under the GST law under the chapter 47. Okay, yeah. So you see, before 30th of the October, it was taxable, 2017. Later on, it was exempted. Yes. And since it is exempted, so it is to be reported in table number 5D of GSTR 9 Okay. and 7B of GSTR 9C. Okay. And duty drawback, you are getting as a cash incentive from the government. Transaction in cash money is neither supply of goods nor supply of service. It is outside the definition of goods and services both. Okay. So it is not to be reported in table number 5A of GSTR 9C. Okay, sir. Clear? Yes, sir. Thank you so much. Welcome, ma'am. Welcome. डाउट है Yes, ma'am. सर, जो आईटी जैसे हम लोग एनुअल रिटर्न भर रहे हैं 21-22 का 2021-22, तो जो उसमें आईटीसी जो 20-21 की थी, जो हम लोग 21-22 में ले रहे हैं, उसको क्या कहीं जीएसटीआर 9 या 9C में शो करते हैं? Right. Please note it down. Please note it down. हाँ सर. टेक्निकल पॉइंट है ये. आपने 20-21 की क्रेडिट 21-22 में ली है, राइट? यस सर. तो 20-21 में आपने टेबल 13 में रिपोर्ट किया होगा. हाँ सर. टेबल 8C ऑफ 9 GSTR 9 में रिपोर्ट किया होगा. हाँ. 12C ऑफ GSTR 9C में रिपोर्ट किया होगा. 3 जगह रिपोर्ट किया होगा, करेक्ट है? हाँ 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 सर. अब ये पैसा आपने 21-22 में क्रेडिट लिया. हाँ. आपके 6A में आ गया. हाँ. लेकिन टेबल 8A में नहीं आया ये पैसा. हाँ, क्योंकि 2A उसका उस साल का अपडेट हुआ है, करेक्ट? हाँ हाँ. आपको क्या करना है? आपको ये पैसा 6B में नहीं डालना है. ओके. 6M में डालिए, M फॉर मद्रास. अच्छा. 7J विल मैच विद योर 6A. अच्छा. और चूंकि आपने 6B में नहीं डाला तो टेबल 8 को इंपैक्ट नहीं करेगा. अच्छा. करेक्ट? ठीक है. अब ये पैसा आपका 12B ऑफ 9C में भी जाएगा. हाँ. सारा चीज मैच कर गया. देखिए, मिलाइए सब चीज. सर, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए. तुमने एक प्लस माइनस करके एक समेशन बनाया था, हमको याद है. लिखा दिया भैया, मैंने लिखा दिया मैंने सबको शुरू में. मैं आपको फिर से मैम रिपीट कर देता हूँ. हाँ हाँ सर, प्लीज. लास्ट ईयर में आपने जो क्रेडिट 2021 का था, जो 21-22 में लिया है, लास्ट ईयर के GSTR 9 में टेबल 13 में दिखाया और टेबल 8C में दिखाया, करेक्ट? हाँ हाँ. 12C में दिखाया और 9C का. हाँ. वो रुपया इस बार जो है 21-22 में 6B में मत दिखाइए. ठीक है. 6M में दिखाइए. ठीक है. करस्पॉन्डिंगली टेबल 8 आपका करेक्ट रह जाएगा, क्योंकि 6B में आपने दिखाया ही नहीं उसको. हाँ हाँ हाँ. आपको ये पैसा जो है 12B ऑफ GSTR 9C में भी दिखाना है आपको. अच्छा. ओके. ठीक है ना? ठीक है. हाँ हाँ. अच्छा सर, अभी आपने बोला था कि अगर GSTR 1 में सेल सही हुई है और GSTR 3B में हमने पेमेंट नहीं किया है, जो 100 और 80 वाला आपने एग्जांपल दिया था, इसकी जगह आपने सर उसमें बोला था कि हम लोग 4 को चेंज कर देंगे. हाँ, एडिट कर देंगे. सर, इसकी जगह क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 को उतना ही रहने दें और 9 को बढ़ा दें और नोट में दिखा दें कि भाई हमने DRC से इतना पेमेंट किया था 9C में? नहीं, आपने तो DRC मैं जो बताया था ना, चेंज करना है, वो मैंने तब बताया जब आपका सब्सिक्वेंट ईयर में आपने पेमेंट कर दिया 3B से. अच्छा. जहां आपने 3B से पेमेंट नहीं किया है, वहां टेबल को 4 को एज इट इज रहने दीजिए. हाँ. 9-9C में डिफरेंस रहेगा, उसको DRC 03 से कर दीजिए और उसको नोट में दिखा दें कि DRC से पेमेंट हुआ. पेमेंट हो गया, करेक्ट है. और अगर 3B से पेमेंट करते तो उसको फिर हम 1 टेबल 10 और टेबल 14. टेबल 10 और 14 ऑफ 9. यस. ओके. क्योंकि आपने 3B में सब्सिक्वेंट मंथ में पेमेंट कर दिया ना, सब्सिक्वेंट ईयर में. हाँ 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 हाँ. अच्छा, ठीक है सर. थैंक यू सो मच सर. वेलकम.
विनय जी, GSTR 9 का टेबल नंबर 15 रिफंड ऑप्शनल है, नीड नॉट टू फाइल। सर अगर HSN समरी मेंटेन नहीं किया है तो क्या करना है? सर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म अपलोड नहीं कर पाओगे आप। नहीं, सर, अभी जो retailer GSTR 1 है। जो फाइल किए होंगे उसमें तो सबने HSN कोड दिया ही होगा। बिल्कुल सर प्रॉब्लम ऐसा है कि रिटेलर है और सेल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, एंड जो सर, पैसा ये- आता है वो ये इधर कैश सोर्स से आता है, छोटा सिटी रहने की वजह से, एंड सेकंड UPI से पेमेंट आता है। सर पेमेंट से HSN को कोई मतलब नहीं है। आपके सेल इनवॉइस कटे हुए हैं, विदाउट HSN आपने सेल इनवॉइस काटा है क्या? सर B2C सप्लाई है। B2C सप्लाई में तो आपने HSN तो डाला ही होगा ना। सर नॉर्मली होता क्या, प्रैक्टिकली अगर देखें तो स्टोर पे कोई इनवॉइस लेके नहीं जाता। सर देखिए, स्टोर्स में लेके नहीं जाता, उसके सारे सिस्टम में से डाले हुए हैं। आज की डेट में ये एक्सक्यूज चलेगा नहीं, अच्छा क्योंकि आप विदाउट टेबल 17 को अगर फिलअप किए हुए फाइल करना चाहेंगे तो सिस्टम लेगा नहीं। अच्छा आप विदाउट उसको डाल के फाइल कीजिए, लेगा नहीं सर, फाइल नहीं करने दे रहा है। सर उसमें एक, अब ये बराबर तो नहीं होगा बोलना, लेकिन एक चीज है, अगर मैं एक भी HSN उसमें इंक्लूड कर दूं और अमाउंट अगर मिसमैच भी हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा फॉर्म, तो हाँ, उस वो केस में फॉर्म आगे एक्सेप्ट कर जाके लेगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ सर, रॉन्ग रिपोर्टिंग होगा सर। सर रॉन्ग रिपोर्टिंग में क्या लायबिलिटी रहती है असेसी? सेक्शन 125 डिपार्टमेंट इंपोज करेगा। ओके सर, ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू सर। लेकिन विकास ये HSN कोड वाला रियल में जहाँ पर रिटेलिंग का काम है, तो FMCG प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है इसका मेंटेन करना। यार प्रैक्टिकल सिस्टम अगर रिपोर्ट अगर नहीं ठीक, अगर इन्होंने अगर अपना सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर लिया, उनका तो निकल जाएगा। जो कॉन्फ़िगर नहीं कर पाए हैं छोटे छोटे लोग साहब, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। इवन आफ्टर 5 years you are saying the system is not configured. अब ये क्लाइंट सब तो ऐसी है ना, भी बात है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं? हाँ, we are not responsible for that. What can we do? One अदरवाइज question. आज के दिन में सब कुछ साहब, सब तो आज के दिन होने का, सब तो स्कैनिंग करके बिल बनता है, सब कुछ हो रहा है। अपने जो One question is जात- from the chat box. Importance of table 13 in GSTR 9. I am not getting your query. Can you unmute yourself and ask? Any question? टेबल 13 क्या है इसमें? टेबल 13 भैया, ये पार्ट 5 में 4 टेबल है, 10, 11, 12, 13, एंड देन हाँ। टेबल नंबर 14 रिजल्ट ऑफ 10 - 11। हाँ। और टेबल 13 उनकी बात कर रहे हैं। टेबल 13 मींस क्रेडिट ऑफ financial year 2021 you have taken 22-23. That table 13 need to be reported, and this table 13 will show in 8C and 12C of GSTR 9C. यही तो आप थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे उनको, मैडम को। Yes. I think there is no more query in the chat box and participants. If there is any query, please raise hand. क्वेरी तो कुछ नहीं है। दो ही बात होती है भैया, क्वेरी अगर कुछ नहीं है तो दो ही बात होती है, या तो मैं सही से समझा नहीं पाया या इतना अच्छा समझाया कि कोई क्वेरी नहीं बची है। नहीं, क्वेरी तो काफी आई है यार, क्वेरी कब नहीं आई है? क्वेरी काफी आई है। आपने काफी डिटेल में समझाया, बहुत बढ़िया समझाया आपने। लेकिन इसके साथ में मैं विकास की बात को एक थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए बात करूंगा मैं, क्योंकि विकास अच्छे से जानता है, बिकॉज आई हैव सीन कि हम लोग जब फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं ना, उस वक्त में जो भी लोग एक रिकॉन्सिलेशन बनाकर रखते हैं GSTR के साथ बुक्स का और इनपुट टैक्स क्रेडिट का, एंड टोटल फ्लो ऑफ पेमेंट कि कितना हमारा आउटपुट लायबिलिटी, हाउ दिस हैज बीन पेड, वेदर बाय वे ऑफ आईटीसी में कितना IGST, CGST, SGST के थ्रू हुआ है, और कितना हमारा बाई कैश हुआ, उसका चैनल पूरा, एंड देन इन GSTR 2B के साथ में अपने पार्टी वाइज अकाउंट्स का पूरा रिकॉन्सिलेशन करके रखते हैं। तो उसपे जो हमको फॉर्म फिलअप करना होता है ना, उसके लिए जितने भी रॉ मटेरियल है ना, सब उससे निकल जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम अगर GSTR 2B को जब रिकॉन्साइल करते हैं ना, तो उसमें हमारे बहुत सारे फिगर आते हैं कि लास्ट ईयर से रिलेटेड इस साल में 2B के अंदर में आया है, इस साल में हमने परचेज किया जो कि नेक्स्ट ईयर में आया है, और वो एकदम एक्यूरेट निकलता है उसके अंदर में। बिल्कुल। तो ये काम जो भी करेगा उनके लिए GSTR 9 फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज मुझे हमारी ऑफिस के अंदर में 20 9 फाइल करना है,
तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस में स्टाफ ने जो वर्किंग की ऑडिट के वक्त में उसको खाली रिव्यू कर रहा है कि उसमें कुछ लेफ्ट आउट तो नहीं रह गया था ना। बिल्कुल। 1-2 दिन के अंदर में सारे के सारे फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। और जो लोग आज के दिन में जीएसटीआर 9 और 9C के हिसाब से वर्किंग करेंगे ना, दे विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। True. Any query from anyone? Let us conclude now. कंक्लूड करें अपने फिर। Thanks a lot to patience listening. Thank you, sir. Thank Thanks you, for sir, giving very me much. opportunity. विकास जी आज फुल हाउस था। फुल हाउस है रे भैया, Full मेरे house तो throughout. 100 से ज्यादा ये हो गए थे, और जिसमें 5-7 लोग कर नहीं पाए, 10 लोग कर नहीं पाए। शुरू में तो सबको रिप्लाई कर रहा था मैं। एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि लास्ट तक जो अभी तक में 97 लोग अभी भी हैं। सर मींस विकास जी हमको देवास बस फुल नोट हाउस लगाना फॉर पड़ा। द होल सेशन। It speaks volume of the topic as well as of the speaker. Sir. टॉपिक भी आज बहुत इंटरेस्टिंग था और आपका समझाने का स्पीकर तो भैया आज हमारा जो मैंने कहा सबसे पहले कि रिमेम्बर्स द लॉ बाय लाइन, तो सारे सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो है किस जगह पर किस पेज में क्या लिखा हुआ शायद सब कुछ बता देगा अभी बैठे बैठे। अरे सर, so nice of you, sir. So nice of you. Thank you. सर उसकी बैठी हुई है विकास हो के ऊपर अभी आज के दिन में, तो पहले जीएसटी कंसर्न। आशीर्वाद है आप लोग का। थैंक यू विकास भैया। चलो Thank you, Mukesh ji. चलो, Thank you. let for us joining. conclude the session and I request Vishnu to offer a vote of thanks, hearty vote of thanks to Vikas. Thank you, Vikas ji, for such a lively session. And as you told, this was a full house, full 100 participants were there. And आपने इतने बढ़िया तरीके से फॉर्म 9 और 9C को किस तरीके से भरा जाए और किस तरीके से रिकॉन्साइल किया जाए ये समझाया। और मतलब हम लोग तो चूंकि काफी ये थोड़ी सी इस पे ध्यान थोड़ा कम है, इन डेप्थ थोड़ा कम जाते हैं हम लोग, लेकिन अगर आपको फॉलो करें और इसमें जाए तो काफी लोगों को बेनिफिट होगा और मिस्टेक्स काफी कम होगी। थैंक यू फॉर योर देखिए दिन Thank you. Thank you, sir. Thanks a lot to all the viewers, all the participants for sharing their knowledge, their questions. Thank you, sir. Thanks for appreciating me. Thank you. Thank you.